Hello. Okay. Welcome students. Welcome to the course of Industrial Engineering. Today we are going to see an important topic, that is CPM. In last lecture we had seen part related question, how we are going to draw the network diagram for find out the best suitable way for completing our project. We had also seen that a question related to PERT, in which we had seen how we are going to calculate the expected time T, the variance, and the standard deviation. For finding out these three, we need 3 times, and we also know that the PERT is based on 3 times to estimate the project. The 3 times are optimistic times, means when the things is in the favor of, or the all condition is in favor of the project. So means you will not get any obstacles for that. Second one is most likely time. The most likely time is the normal condition for completing the project. Okay, normal condition means you may get some obstacle or you may get some favor circumstances for completing the project. In last, pessimistic time. Pessimistic time is nothing but a condition in which all the things are in the oppose of your project. So it gives us the maximum time for completing the project. Okay, now we are going to start CPM. CPM. This CPM not tells us about any political party. It tells us the full form of CPM is critical path method. Okay, critical path method means what are the paths you are going to employ for completing the project. प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या तरीका या कौन सा रास्ता अपनाया जाए, ठीक है, क्योंकि कोई काम करने के लिए कई तरीके होते हैं, कई रास्ते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा रास्ता होगा, मान लीजिए किसी प्लेस पे जाना है, ठीक है, तो जगह पहुंचने के लिए बहुत दूर से घूमते हुए आप आइए। एक नॉर्मल रास्ता, एक शॉर्टकट गली गली से आप पहुंच जाइए, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी है, कई सारे रास्ते होंगे, उस रास्तों में से आपको एक रास्ता चॉइस करना है और वो रास्ता आपको होगा क्रिटिकल पाथ, एंड दैट क्रिटिकल पाथ इज नेम्ड एज, और दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज critical path method. Okay, now I wish to write the definition of critical path method and some theoretical things related to that. Okay, now
The path in a network diagram which consume maximum time. Write down the path in a network diagram which consumes maximum time. Which consume maximum time from first to the last event. Maximum time from first to the last event is called critical path. Okay. The path in a network diagram which consumes maximum time from first to the last event is known as critical path. Okay. Now, some more theoretical part related to this CPM. An activity on critical path is called critical activity. कैसे लिखते हैं? An activity in critical path is known as critical activity. Is known as critical activity. Okay. One more thing. अच्छा, क्रिटिकल एक्टिविटी जैसे कि हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कई पाथ होंगे, ठीक है। सभी पाथ को हम लोग नहीं कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पाथ मिलेगा, जो रास्ता होगा अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जिस रास्ते को फॉलो करते जाएंगे उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। उन एक्टिविटी को हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी कहेंगे। ओके, गॉट इट। अगला स्टार्ट। अरे the time taken along the criteria, the time taken along the criteria, sorry, not criteria, along the critical path. The time taken along the critical path is known as expected project completion time. The time taken along the critical path is known as or is called expected project completion time is known as expected project completion time. Okay, now we know that the PERT as well as CPM follow beta distribution, and CPM based on deterministic model, and some were related to probability.
Okay, so when you're going to start the project, when you're going to start the project, and your expected time for the completion of project may be uh, 50 days. Some have hypothetical day, you may write 100 day also. So how you are going to predict that, how you are going to predict that your project will completed on your schedule or your expected date. So you may see different example और different government work जो कितने सालों से चला आ रहा है अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका कोई कंप्लीशन टाइम ऐसा शेड्यूल नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्टर आए चले गए, कई कॉन्ट्रैक्टर चेंज भी हो गए, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, ठीक है। और कंपनियां क्या करती हैं, अगर वो एक्सपेक्टेड टाइम से डिले होता है तो दे में चार्ज फॉर डिले और डिले चार्ज and maybe some 1,000 rupees, 1,000 rupees, depending upon the your sincerity or depending upon the cost of the project or depending upon the necessity, okay, urgency, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। Okay, A your starting time, B and C your end time. This is time axis. ये क्या है, टाइम एक्सिस। दिस टाइम एक्सिस, ठीक है। एंड दिस अपर पॉइंट इज नोन एज टीई, एक्सपेक्टेड टाइम, टीई, ओके। यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है कोई प्रोजेक्ट मैक्सिमम वर्क कंडीशन में, ठीक है। इसको हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल, टी एस, दिस इज शेड्यूल टाइम, ठीक है। तो जल्दी क्या होता है, फर्म्स और कंपनीज एक्सपेक्टेड टाइम को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बना देती है, और जो वेंडर होंगे, उनके सप्लायर होंगे, उनको बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 25 डेज उनका एक्सपेक्टेड टाइम है, ठीक है, तो एक शेड्यूल टाइम होगा, ठीक है। शेड्यूल टाइम के हिसाब से 30 डेज है मान लीजिए, ठीक है। अगर इससे लेट होगा, कंपनी क्या करती है, कुछ अप्रॉक्स टाइम देती है, ठीक है। तो अगर वो 30 डेज हैं, 25 डेज एक्सपेक्टेड टाइम, तो शेड्यूल बोल दे नहीं, ऑलमोस्ट आपको क्या करना है, 5 दिन मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट अगर इफ़ यू आर गोइंग टू क्रॉस दिस बाउंड्री, दैट इज 30 डेज, ओके, यू मे चार्ज फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ से ये निकालने का तरीका है। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेज, इस ग्राफ को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये ग्राफ हमारे दिमाग में रहेगा, इसको हम रफ कर रहे हैं, और आके अपने एक्चुअल समथिंग फॉर्मूला, जो फॉर्मूला देखना है हम लोग को, ए बी सी याद हो गया होगा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। राइट डाउन probability for schedule date or schedule time, that is PTS, probability for schedule time to complete the project is equal to area ABS, ABS यहाँ पे था,
एरिया अंडर ए बी एस डिवाइड बाई एरिया अंडर ए बी सी, ए बी सी, एरिया अंडर ए बी एस और एरिया अंडर ए बी सी। ठीक है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ लास्ट हो रहा है वहाँ सी पॉइंट है, और टी एस जो शेड्यूल पॉइंट है वो हमारा ए बी एस है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देगा, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बस आप लोग के जानने के लिए है। जो रिसर्चर है उन्होंने रिसर्च करके एक एक्सप्रेशन दिया है, वो एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। टी एस इज इक्वल टू टी ई प्लस जेड इंटू सिग्मा, जेड इंटू सिग्मा। ठीक है, टी एस इज इक्वल टू टी ई प्लस जेड इंटू सिग्मा। ठीक है, तो टी एस टी जेड सिग्मा क्या लिख लेते हैं हम लोग, टी एस इज इक्वल टू शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अच्छा, एक इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं हम लोग। एक एक्सप्रेशन कर सकते हैं हम लोग सिग्मा के टर्म में, सिग्मा इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई अपॉन जेड। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो तो हम सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि हम कुछ छोटे छोटे टर्म लिखने हैं। टी एस इक्वल टू टी प्लस जेड इंटू सिग्मा, और यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर ली, सिग्मा इक्वल टू टी एस माइनस टी अपॉन जेड। ओके, राइट डाउन। अरे यार, टी एस इज इक्वल टू शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टी हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम, लिख लेते हैं इसको भी, टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। expected time to complete the project। okay, sigma is equal to a standard deviation along the critical path, sigma is equal to standard deviation standard deviation along the critical path and z equal to standard normal variance। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस जो हम लोग कल देखे थे, लास्ट वीडियो आप लोग को याद होगा, इसमें हम लोग स्पॉट से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी फाइंड आउट किए थे। ओके, नाउ एक चीज़ याद रखेंगे, जो सिग्मा है वो क्रिटिकल पाथ के अलोंग भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, जो क्रिटिकल पाथ होगा उसके अलोंग
जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो, ठीक है। तो उसका छोटा सा एक फार्मूला है, छोटू सा फार्मूला, क्या मतलब एक्सप्रेशन है, तो हम लोग वैसे भी जानते हैं लेकिन फिर भी उसको लिख लेते हैं। इफ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4, ठीक है। ऐसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकते हैं, ठीक है। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 are the standard deviation along the critical path, then sigma square is equal to sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square plus sigma 4 square. Then sigma is equal to under root sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square प्लस सिग्मा 4 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या है, और ये क्या है, सम ऑफ वेरिएंस अलोंग क्रिटिकल पाथ, ठीक है। और ये है क्या, सम ऑफ वेरिएंस है। सिग्मा स्क्वायर हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो सम ऑफ वेरिएंस, इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इज इक्वल टू, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सिग्मा स्क्वायर जो हमारा वेरिएंस है, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ वेरिएंस अलोंग क्रिटिकल पाथ। along critical path, ओके। सम ऑफ वेरिएंस अलोंग क्रिटिकल पाथ, इस सिग्मा की वैल्यू आ गई। हम लोग सीधे अब ऐसे करेंगे और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको लिख लिए होंगे, आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसमें फिर पहले की तरह क्या निकालना है, नेटवर्क डायग्राम। तो वही इधर दिख रहा है ना, एक्टिविटी then time in days, इसमें पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम लोग ए या ओ से डिनोट करते हैं, देन पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एंड देन लास्ट में, सॉरी, मोस्ट लाइकली टाइम है ये, एंड देन पेसिमिस्टिक टाइम, इसको हम लोग बी या पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग टी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम, और सिग्मा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम ये वाला क्वेश्चन रफ करेंगे और नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नीचे दिखाई देगा आई तक, सॉरी आई तक है, आई तक तो आई दिख रहा है, ठीक है। प्रीडिसीजर ए का कोई नहीं है, बी का प्रीडिसीजर ए है, सी का भी प्रीडिसीजर ए है, डी का प्रीडिसीजर बी है। इसको ऐसे कर देंगे तो समझ में आ जाएगा।
देन ई का प्रीडिसेसर भी बी है, देन एफ का प्रीडिसेसर भी सी है, सॉरी सी है, जी का प्रीडिसेसर ई है, एच का प्रीडिसेसर डी और एफ है, यानी दो आके कंबाइन होंगे देन एच स्टार्ट होगा। आई का प्रीडिसेसर जी और एच है, जी और एच कंबाइन होंगे देन हम लोग आई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गिवन लिख, सॉरी ये भी लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 4 5 4 15 10 8 4, सॉरी ऊपर से है ना, सॉरी एक के सामने 4, देन 5, देन 4, देन 15, देन 10, देन 8, देन 4, देन 1 एंड देन लास्ट में 6, ठीक है। ऐसे ही मोस्ट लाइकली टाइम 6 7 8 20 20 के बाद 18 9 8 2 एंड देन 7। पेसिमिस्टिक टाइम 8 15 12 26 20 पे 25 है, 26 16 12 3 एंड देन 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन था पहले से, और इसकी सहायता से हम लोगों को नेटवर्क डायग्राम बनाना है, देन एक्सपेक्टेड टाइम, सिग्मा की वैल्यू, और हम लोग को क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन उस सबसे पहले हम लोग क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। तो वही नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, उसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा। इधर वाला पोर्शन रहेगा प्रीडिसीजर और एक्टिविटी वाला, ये वाला पोर्शन रफ करेंगे। आई होप क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। ओके ना, अब कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट 1, स्टार्टिंग पॉइंट 1, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ए निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ए, क्योंकि ए का डिसीजन कुछ नहीं है, ए हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। बट हम लास्ट क्वेश्चन जो किए थे पार्ट में, उसमें ए बी सी का प्रीडिसेसर कुछ नहीं था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ए भी निकल रहा था, बी भी निकल रहा था और सी भी निकल रहा था, यानी 3 एक्टिविटी निकल रही थी, यहाँ पे एक एक्टिविटी से ही स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे बी और सी के लिए प्रीडिसेसर ए है, यानी यहाँ पे ये हो गया 2 ए से। अब यहाँ पे 2 जगह ए है, यानी ए से 2 एक्टिविटी निकलेंगे, ए से 2 एक्टिविटी निकलेंगे। कैसे पहचाने हम लोग, जो लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे उनके लिए बड़ा आसान हो गया होगा। ए हमारा दोनों के लिए कॉमन है, बी और सी के लिए, यानी ए जो हमारी एक्टिविटी जहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद हम लोग 2 एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज बी एंड सी, ठीक है। तो करते हैं इंट्रोड्यूस, यहाँ पे ये बी हो गया और देन ये इधर सी हो गया, ठीक है। जनरली इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे, दोनों तरफ किए हैं, आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। देन
ई हमारा स्टार्ट होगा बी खत्म होने के बाद, यानी इस पॉइंट ये सी है, सॉरी ये सी। तो इसको हम लोग यहाँ इसको बंद करते हैं, नोट बनाते हैं, और ये हो गया पॉइंट बी। और यहाँ खत्म होने के बाद कौन स्टार्ट होगा? ई। करिए स्टार्ट ई को स्टार्ट कर दिया हम लोग, ठीक है। सी जहाँ खत्म होगा उसके बाद एफ स्टार्ट होगा, सी जहाँ खत्म होगा उसके बाद एफ स्टार्ट होगा। तो ये तीसरा नोड था, तो ये नोड नंबर 4 हो गया। तीसरा नोड था तो नोड नंबर 4 हो गया। और इसके आगे लिखेंगे हम लोग एफ। ओके, नाउ जहाँ ई खत्म हो रहा है वहाँ के बाद जी स्टार्ट होगा। इसको ये 4 हो गया, तो ये नोड नंबर 5 बनाइए इसको, और स्टार्ट करेंगे हम लोग जी को। जी, ये नोड नंबर 5 हो गया, तो स्टार्ट कर दिए हम लोग जी को, ठीक है। अब आते एच पे, यहाँ देखेंगे डी और एफ दिख रहा है, डी और एफ। डी तो रुकिए नहीं, सॉरी बीच में हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ब्रश करना पड़ेगा। डी पे ध्यान नहीं गया। स्टार्टिंग पॉइंट नोड नंबर 1, यहाँ से ए स्टार्ट हुआ। नोड नंबर 2, ए दो जगह है, यानी यहाँ से बी और यहाँ से सी, ठीक है। जहाँ बी खत्म हो रहा है वहाँ पे डी है, ठीक है। और फिर जहाँ बी खत्म हो रहा है वहाँ पे ई डी है, यानी ई से दो निकलेंगे, दो एक्टिविटी निकलेंगी, ठीक है। वहाँ एक ही बनाए थे हम, यहाँ पे नोड नंबर 3 और यहाँ से दो एक्टिविटी करिए। पहली एक्टिविटी डी और दूसरी एक्टिविटी ई, सेकेंड एक्टिविटी इज ई, ठीक है। पहली एक्टिविटी डी, दूसरी यानी जहाँ पे बी खत्म हो रहा है, देन आफ्टर वी विल एबल टू स्टार्ट एक्टिविटी डी एंड ई। नाउ अब हम राइट ट्रैक पे, ठीक है। सी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो तीसरे के बाद ये चौथा नोड, और यहाँ से हम लोग सी को स्टार्ट करेंगे। तीसरे के बाद चौथा नोड, सॉरी सी जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे एफ स्टार्ट होगा ना, ये एफ है, यहाँ पे हम लोग एफ को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी एफ, ठीक है। एफ स्टार्ट हो गया। नाउ जी कहाँ स्टार्ट होगा? ई के बाद। यहाँ एक नोट बनाइए, नोट नंबर 5, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग जी को, नोट नंबर 5, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे जी को। क्यों? क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग ए, ए इज ए प्रीडिसेसर फॉर जी ना, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ई वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी विल एबल टू स्टार्ट जी, ठीक है। नाउ डी और एफ, डी और एफ, ठीक है। एक छोटा वेरिएशन कर रहे हैं, इसको करते हैं हम लोग डी और इसको ई, नहीं तो फिर हम लोग को ओवरलैप करना पड़ेगा, और ये आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ गया जी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग डी को अगर ऊपर लिख देंगे तो फिर इस लाइन को कट करके लाना पड़ेगा, तो वो हैपोजट हो जाता है, यानी वो थोड़ा गंदा दिखाई देगा, तो उसमें हम मिटा देंगे और फिर सही कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग के वाइट नहीं लाओ, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब नीचे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नीचे दिखाई देगा आपको कि डी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को ऊपर से नीचे लाने में उसको कट करना ही पड़ेगा, इसलिए डी को नीचे लिखते हैं और एक ऊपर, ठीक है। तो अब डी एफ, अब यहाँ पे आसानी हो गई, डी और एफ जहाँ मिट करेगा वहाँ से एच आएगा, ठीक है। 5 हो गया, इसको मिट कराइए, मिट कराइए डी और एफ, 5 के बाद 6, और यहाँ से आ गया एच, ये एच हो गया, ठीक है। जी और एच जहाँ मिलेगा वहाँ पे आई आएगा, अब सही है। जी और एच जहाँ पे आएगा वहाँ पे आई बनेगा। यहाँ लाते हैं इसको ऐसे में, इसको ऊपर जगह नहीं है,
आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे सही रहेगा। ठीक है, जी और ये हमारा क्या है एच, डी और एफ से एच आ रहा है। तो ये नोड नंबर हो गया 6 7 और यहाँ से बन गया आई और ये इसको बंद कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये आई हो गया और ये नोड नंबर 8 हो गया। ठीक है, समझ में आया? अभी आज हम लोग नेटवर्क बनाना ही समझेंगे पहले। ठीक है, नेटवर्क में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत गलतियाँ होती हैं, वो नेटवर्क ही बनाएंगे हम लोग आज। ठीक है, सर क्वेश्चन तो सॉल्यूशन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी वीडियो लंबा रहेगा, इसलिए थोड़ा हम लोग शॉर्ट में करते हुए चल रहे हैं ना। एक बार रिवाइज करते हैं। वी हैव एक्टिविटी एंड इट्स प्रेडिसर। ठीक है, तो प्रेडिसर मतलब जो एक्टिविटी के पहले आएगा वो प्रेडिसर है। ठीक है, तो ए दो इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट सो नो प्रेडिसर इज रिक्वायर्ड, कोई प्रेडिसर रिक्वायर नहीं है। बी फॉर बी predecessor is A and for C also predecessor is A, means from A we are going to start two activity, दो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे हम लोग B और C। ठीक है, नाउ D and E, for starting D and E we have to complete this activity B। B में आएंगे, B को अगला नोट देंगे और वहाँ से D और E दो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, D और B को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। नाउ फॉर एफ, एफ के लिए वी हैव टू कंप्लीट सी। ठीक है, तो सी यहाँ पे जो ए से निकला था एक्टिविटी उसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, एक्टिविटी नेम देंगे, यहाँ पे नोट का नाम देंगे और वहाँ से एफ को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग एफ, एफ को इंट्रोड्यूस कर दिए हम लोग। ई कंप्लीट होने के बाद जी, यहाँ पे ई था, ई को कंप्लीट करिए और यहाँ पे जी। ठीक है, जी यहाँ बीच में देते हैं, सही है। ठीक है, ई कंप्लीट हुआ, देन वी स्टार्टेड जी, जी को स्टार्ट कर दिया हम लोग। देन डी एन एफ को कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे, मीन्स एट पॉइंट वेयर डी एंड एफ इज मीटिंग देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एच। डी और एफ दो एक्टिविटी मीट करेंगे किसी नोट पे और उसके बाद हम लोग एच को स्टार्ट करेंगे। तो ये डी और एफ दोनों मेट कर रही हैं नोट नंबर 6 पे और यहाँ से एच को स्टार्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, ओके, एंड लास्ट वन जी एन एच। ठीक है, तो जी एन एच जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे हम लोग आई को इंट्रोड्यूस करेंगे, मीन्स एट नोड 7, एट नोड 7 वी आर गोइंग टू मेक इट मिस जी एन एच एक्टिविटी, देन आफ्टर आई इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll solve how we are going to calculate the critical path for this network and the standard deviation variance and some more extended question, that is if the delay charge is 200 rupees per day, so what is the probability of getting fine for not more than 1000, 1000 से ज़्यादा फाइन ना देना पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए हम यही इसको रोकते हैं। फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द more numerical part. Okay.